Kolkata police on Sunday issued a detailed defense of its decision to arrest 22-year-old law student and influencer Sharmishta Panoli, who has been accused of stoking communal hatred through a social media video. Facing flack from several quarters over the move, the force insisted that Panoli's arrest had nothing to do with her patriotism or anti-Pakistan stance, but stemmed from the use of abusive and divisive language that it said crossed legal boundaries. Panoli was arrested in Gurugram late on May 30 and brought to Kolkata, sent to 14-day judicial custody. Far-right Dutch MP Geert Wilders shared an all eyes on Sharmishta post in her support. She had shared a video earlier in May criticizing Bollywood celebrities, particularly Muslim actors, for their silence on Operation Sindoor, a reported military strike on terror camps in Pakistan-occupied Kashmir. The now deleted video, which contained inflammatory language and communal overtones, was flagged in a complaint filed at the Garden Reach police station on May 15. Police said that Panoli had been untraceable despite multiple attempts to serve her notice under Section 35 of the newly implemented Bharatiya Nyaya Sanhita. A court warrant followed, leading to her arrest and transfer to Kolkata under transit remand. While Panoli had publicly apologized and taken down the video, the police insisted that legal proceedings had already begun and could not be reversed by a mere apology. The law takes its own course once the case is registered, the statement read. Rejecting claims that the arrest was politically motivated or meant to appease a vote bank, the police reiterated that the case was not about communal provocation, not nationalism. The accused was not arrested for opposing Pakistan or for any expression of patriotism, but for uploading content that could provoke hatred between communities, the force clarified. With police temperature rising over the incident, BJP leaders accused the Trinamool Congress-led government of targeting a young Hindu woman for electoral reasons. BJP's Amit Malviya questioned the timing of the arrest, saying Panoli had already deleted the post and apologized weeks earlier. Justice cannot be selectively applied. If the law is truly impartial, then would the same standard be used against Mamata Banerjee for her past remarks? He asked. The Kolkata police, meanwhile, urged the public to maintain restraint and act responsibly on social media. In moments when the country is united, such acts only aid our enemies, the statement read. The force added that hate speech that targets any community or class of citizens and which threatens communal harmony is punishable under the BNSS. Bharatiya Janata Yuva Morcha's Tajinder Bagga said he is in touch with the father of Sharmishta. BJP MP and actress Kangana Ranaut defended Panoli, saying youngsters use such language these days, and she apologized, which is enough. There is no need for her to be bullied or harassed further, she added. देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है, वो इन जनरल उन्होंने कहा था। आजकल के बच्चे जो है इस तरह की भाषा चाहे वो अंग्रेजी में यूज करें चाहे हिंदी में यूज करें करते हैं, लेकिन मैं ममता जी से ये मैं विनती करती हूँ कि उसे जल्दी ही रिहा किया जाए। वो उसकी उम्र भी बहुत छोटी है एंड शी इज अ लॉयर, उसका सारा करियर सारी जिंदगी जो है बर्बाद करने की जो साजिश की जा रही है, दिस इज वी डोंट सपोर्ट। देखिए, किसी को भी, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को भी किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब पाकिस्तान को जितनी भर के गालियां देना है आप दीजिए, भर भर के गालियां दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। मगर जबकि पूरा देश 140 करोड़ भारतीय एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उस वक्त आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे अगर हमारे नबी के बारे में, हमारे प्रॉफिट के बारे में, तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप गुस्ताखी कर रहे हैं, इसके खिलाफ में काफी लोगों ने एहतजाज दर्ज करा है,
लीगल एक्शन की मांग की कि भाई नफरत ना फैले, नफरत को रोकने के लिए इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। हमने भी कहा, सरकार से गुहार लगाई कि भाई इनको रोकिए, इनके खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि सरकार लीगल एक्शन ले, कि इस तरह की भाषा का, इस तरह का जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा हमारे हुजूर की शान में, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है, लेकिन हमने पहले ही कहा था वायलेंस का हम हमेशा खंडन करते रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, मगर लीगल एक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि कोई दूसरा बोले नहीं। और नफरत फैलाने वाले को रोकना चाहिए ना, इस तरह की जो नफरतबाजी फैलाते उनको रोकना सरकार का, कानून का काम है। अब सरकार ने, कानून ने, अब कोलकाता की पुलिस आई, उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ काफी सारे एफआईआर थे कोलकाता के अंदर, दूसरी जगहों के ऊपर, उनको अभी गिरफ्तार किया। अब जो कानून प्रतिक्रिया करेगा, जो कोर्ट फैसला करेगा, सबको मंजूर होगा। पर यहां पर देखा यह जा रहा है कि हमने कानूनी मांग की अरेस्ट करने की, तो हमको धमकियां आ रही है, हमको सोशल मीडिया के जरिए से, फोन कॉल के जरिए धमकी दी जा रही है, अब्यूज किया जा रहा है। तो अपने इनकी भी लिस्ट तैयार की है, जो हमको धमकियां और इस तरह की गाली गलौज कर रहे हैं, इनकी भी लिस्ट तैयार की है हमने। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुंबई पुलिस को दी जाएगी और फौरी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी, ताकि लीगल कार्रवाई की भी मांग करना क्या गुनाह हो गया है देश के अंदर? हाँ, हम लीगल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो हमको धमकियां देंगे। तो हम बहुत जल्दी मुंबई पुलिस के पास जा रहे हैं। सब जितने भी हैंडल्स है, बोट हो, रियल हो, जो भी फोन पर इस तरह की अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है हम लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। उनके खिलाफ भी हम एफआईआर रजिस्टर कराएंगे मुंबई पुलिस में जाकर। Meanwhile, Home Minister Amit Shah ramped up his attacks on West Bengal CM Mamata Banerjee on Operation Sindoor. दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रेगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर ले। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर, सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला, और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया, आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब।